Hello friends, in last video we have discussed the standard results for calculation of PDV work and different type of quasi-static processes like isobaric, isochoric, isothermal, adiabatic. In any general polytropic processes में PDV work के calculation के लिए हमने standard results को derive किया. Now in this video we are going to discuss some numericals and जो हमारा heat transfer से related portion जो बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, लाइक व्हाट द मीनिंग ऑफ हीट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लाइक दैट डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस वी विल डिस्कस. नाउ यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू आइसोकोरिक प्रोसेस. देखिए, इन दिस केस वी हैव this is a closed system basically. Okay, in this closed system we have air as a system. Okay, now initially the pressure of air is 500 kilopascal and initial temperature of the gas, basically air, is 150 degrees Celsius. Now as there is some heat is transferred out of the system. Okay, now due to the heat transfer outside the system, the temperature of the gas, temperature of air, finally goes to 65 degrees Celsius and simultaneously the pressure decreases to 400 kilopascal. Now it is a rigid tank. Okay, this is a rigid tank. So in rigid tank, due to heat transfer, the pressure and temperature both are decreasing, and as it is a rigid tank, so basically the volume is constant. Okay, volume is constant. Now if I draw, now what the basic assumption here, what we are assuming is it is a quasi-static process. Okay, quasi-statically the pressure and temperature are decreasing. Okay, quasi-static means it's very slow process. It's the basic assumption. Okay, as we already know, for the to apply PDV work or to calculate PDV work, the process must be quasi-static. Okay, so if I draw PV curve in this process, as initially the pressure is high, this is, I can say, state 1, and as volume is constant and pressure is decreasing. Okay, so this is the state 2. Now देखिए, if I solve by integral of PDV, as I already know that dV, the change in volume, is 0. So basically the work transfer from 1 to 2 is 0. इसके अलावा यदि मैं सेकेंड मेथड से देखता हूं कि एरिया अंडर द पीवी कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम रिप्रेजेंट्स द वर्क ट्रांसफर. ओके, हमारा क्लोज्ड सिस्टम है, दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम. नाउ इन दिस area under the curve from state 1 to state 2 on the volume axis is 0. Okay, so on the basis of that I can say work transfer from state 1 to state 2 is 0. Okay, so अब हम next question लेते हैं. Again ये देखिए, in next question again we are having a piston cylinder arrangement. Okay, in this piston cylinder arrangement there is no friction in between the piston and cylinder. Now let's assume there is some mass of the piston, let's m kg. Okay, this is the mass of piston, and initially you can say the pressure of the gas inside the system, there is some pressure. Okay, now due to the gas and due to the weight of the piston, which is balance, and the third pressure is basically atmosphere pressure. Okay, so if I draw the free body diagram of the piston, then it is basically in downward direction that weight is acting. Okay, from up top side atmospheric pressure is acting, P atm into area. If I multiply of the piston तो ये force हो जाएगा. From downward direction there is basically gas pressure multiplied by area. Okay, so this is the basically free body diagram of the piston. Now if I am saying the basic this piston, there is a gas inside the cylinder, and this
there is expansion process from state 1 to state 2. Gas inside the cylinder expands from state 1 to state 2 and the basic assumption is the expansion process is quasi-static. Okay, तो अब देखिए इसमें पिस्टन सिलेंडर में कुछ गैस है, ये हमारा पिस्टन का कुछ वेट है. अब द गैस एक्सपेंड फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मच इज द वर्क ट्रांसफर व्हेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ओके, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ देखिए. अब इफ आई ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम और अब मैं फोर्स बैलेंस करता हूँ तो क्या आएगा देखिए, पी ATM इंटू ए प्लस mg that is equals to P gas into A. Okay. Now, if I calculate the gas pressure, then that is actually P ATM plus mg by A. This is basically pressure due to the gas. Okay. Now, during this expansion process, as the weight of the piston is constant and as the outside pressure is atmospheric, that is also constant, so the pressure inside the gas will also remain same. Okay, क्योंकि देखिए बाहर से जो जिसके अगेंस्ट गैस को वर्क करना है वो एक तो वेट को रेज करवाना है और दूसरा जो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क कराना है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट है, वेट भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट ही रहेगा. तो एज basically from this statement I can say it is an isobaric process. From this statement I can say it is an isobaric process. So during this isobaric process the work is basically dW from state 1 to state 2, that is basically PdV. Okay, and that is basically equals to pressure is basically constant. Pressure हम system किसको ले रहे, गैस is a system, तो P gas multiplied by delta V. क्यों, क्योंकि प्रेशर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dV को इंटीग्रेट करता हूँ तो डेल्टा V आ जाएगा. तो मैं आपको इतना समझाना चाह रहा था कि हाउ इट इज ए फील करवाना चाह रहा था कि कैसे हमारा एक आइसोबारिक प्रोसेस है. आइसोबारिक क्यों है, रीजन यही है. रीजन क्या होगा इसका कि वेट भी कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो गैस को जिसके अगेंस्ट वर्क करना है वो दोनों जो भी फोर्सेज हैं दे आर कांस्टेंट. ओके, तो गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा. देखिए एज इट इज ए क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. ओके, हर केस के ऊपर पिस्टन शुड बी इन इक्विलिब्रियम ना, क्योंकि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेसेस आर वेरी स्लो प्रोसेसेस. तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें वर्क हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट हम केस लेते हैं अगेन एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का. Is you can see in this question there's a piston cylinder arrangement as our system is air inside the cylinder. Initial volume is basically 0.4 meter cube. Initial pressure is 100 kilopascal, and in this question the temperature is 80 degrees Celsius. And during this process, during this expansion process from during this compression process from state 1 to state 2, this is like that. If this gas I'm going to compress it, then during this compression process it happens like that कि temperature of the system, temperature of the gas remains constant. वो 80 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है. अब मुझे निकालना है कि हाउ मच इज द वर्क ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन प्रोसेस. तो अब देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन के हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिराइव किया था, वो हम इसमें अप्लाई करेंगे. और देखिए इनिशियल वॉल्यूम एयर का 0.4 मीटर क्यूब है यहाँ पे. फाइनल वॉल्यूम जो एयर का है दैट इज 0.1 मीटर क्यूब. लिखा हुआ है एयर इज कंप्रेस्ड टू 0.1 मीटर क्यूब, तो बेसिकली दिस वॉल्यूम इज 0.1 मीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम एट दिस स्टेज इज 0.4 मीटर क्यूब. नाउ द वर्क कैलकुलेशन के लिए इन आइसोथर्मल प्रोसेस, in case of isothermal process हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव किया था P1 P1 ln V2 upon V1. ओके, नाउ देखिए इनिशियल प्रेशर इज बेसिकली 100 किलो पास्कल. इनिशियल वॉल्यूम इज बेसिकली 0.4 मीटर क्यूब into ln in V2 by V1. V2 is basically final volume, V2 0.1
divided by V1 is basically 0.4. Now if I solve this equation, basically 100 into 0.4, that is basically 40, that is 40 ln into 1 by 4. If I solve this equation, then I will get minus 55.5 kilojoule. Okay, further solving this equation. अब देखिए, तो my target was to use a numerical based on the isothermal process. Basically देखिए, ये compression process हुआ state 1 से state 2 तक, isothermally compress हुआ है, temperature constant है, तो हम ये results है किसी भी क्वेश्चन isothermal process में, that is, और basic assumption इसमें भी यही है कि जो process है that is quasi-static. जो वर्क हमने निकाला P1 V1 ln V2 by V1, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमें याद कर लेना है, ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. Now next we will discuss one more numerical. In this numerical, as you can see, there is a piston cylinder arrangement but a spring is attached to it. Okay, a spring having stiffness 150 kilonewton per meter, ये spring attached है. Initial conditions are given. Area of the piston is given 0.25 meter square. Pressure is basically 200 kilopascal. Next is volume is 0.05 meter cube. Okay. Heat is supplied until the volume of the gas doubles. Okay. अब देखिए कि यहाँ से initial volume दे रखा है 0.05. I am going to supply some heat. As the pressure is going to rise, temperature is going to rise. So due to that, the spring will compress, or I can say the gas will expand, and due to the expansion of the gas, the piston will rise and spring will compress. Okay, so this is, I can say, if I draw a PDV graph, PV curve, then initial pressure is given 200 kilopascal. Okay, now how pressure varies with volume? Okay, this is the question. Now if I draw the free body diagram of the piston, then I can see at any expansion, at any stage, there are three forces are acting. One is basically the weight of the piston. Okay, next is the atmospheric pressure, and next is the spring force that is acting over the piston. Now this is basically the spring force. Okay, next is basically the atmospheric pressure, next is basically the weight, and from inside the system there is basically the gas pressure. Initial conditions में I am assuming that spring is at its natural length. Okay, so in this case, if spring is at natural length, then initially spring force is 0. Okay, that force is balanced by gas pressure, weight and atmospheric pressure. So initial conditions में मैं कह सकता हूँ कि P gas equals to mg plus P atm, और वो कितना दे रखा है 200 kilopascal. Okay, अब देखिए आगे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो पिस्टन गैस एक्सपेंड करेगा, पिस्टन राइज करेगा. ओके, अब इसने बोला है कि हीट इज सप्लाइड अंटिल द वॉल्यूम ऑफ गैस डबल्स. नाउ volume of gas doubles, it means the final volume, the change in volume, that is equals to V2 minus V1, and volume of the gas doubles, it simply means that delta V, that is equals to V2 डबल हो जाता है तो 2 into 0.05 minus V1 is basically कितना हो जाएगा, given is 0.05, तो delta V is basically 0.05. okay, now if I balance again at any position x, यदि मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो spring force is balance, spring force plus weight plus atmospheric pressure, these all the forces are balanced by gas pressure, क्योंकि gas pressure rise करेगा क्योंकि हम heat supply कर रहे हैं. तो at any stage further, तो P gas multiplied by area, that is balanced by 200 kilopascal multiplied by area plus basically I can say the spring force, and the spring force I can say K times X. Okay, now
ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, से इक्वेशन लिखा है। ओके, अब गैस प्रेशर क्या हो जाएगा, 200 प्लस के एक्स डिवाइड बाई ए। तो देखिए यहां से के भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एक्स इज वेरिंग। जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी या फिर पिस्टन राइज करेगा, गैस एक्सपेंड करेगी, तो गैस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओके, और यदि मैं वॉल्यूम के साथ इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो बेसिकली आई कैन से इफ आई मल्टीप्लाई विद ए एंड इफ आई divide by area, then A into X is basically a volume. Okay, so basically the gas pressure is varying linearly. Okay, so ये देखिए linear variation मैंने यहाँ draw किया है. Okay, pressure is proportional to X as V is basically I can say A into X. Okay, now अब देखिए, तो एक मेथड तो ये है कि I can calculate the work by area under the curve on the volume axis. ओके, और दूसरा मैं पीडीवी से इसको इंटीग्रेट करके भी वर्क निकाल सकता हूं। ओके, अब देखिए प्रेशर मुझे पता है कि प्रेशर इज वेरिंग लाइक दैट, एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क आई कैन राइट डाउन पी इंटू डी वी। ओके, तो पीडीवी को इंटीग्रेट करके हम वर्क निकाल सकते हैं। ओके, कैसे देखिए, for dw from stage 1 to stage 2 that is basically pdv. okay, और pdv को मैं क्या लिख सकता हूँ, pressure is basically 200 plus k into x upon a multiplied by dv is basically a into dx. इंटीग्रेट कर देता हूँ from stage 1 to stage 2 that is dw. okay, one method is like that. okay, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि x कितना कंप्रेस हुआ। ओके, तो x कंप्रेशन में कैसे निकालूंगा, देखिए x की लिमिट क्या से निकालूंगा, इनिशियली x इज 0, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, फाइनली जो चेंज हुआ वॉल्यूम में दैट इज 0.05 हमने निकाला है, दैट इज बेसिकली k इंटू डेल्टा एक्स, एंड k इज 150 इंटू डेल्टा एक्स। ओके, दिस इज बेसिकली, this is 0.05, this is basically the volume change. I can write down A into delta x. Area is basically 0.25. okay, volume is the change in volume, I can write down A into delta x. okay, so area is given as 0.25 meter square. okay, so delta x that is equals to 0.05 upon 0.25, that is comes out to be 0.2 meters. okay, so if I integrate it, then 200 plus k is basically 150 into x upon 0.25 multiplied by 0.25 into dx. okay, so 200 multiplied by 0.25 that is basically 50 into dx को इंटीग्रेट करूंगा डेल्टा x that is 0.2, देखिए डेल्टा x is basically 0.2 प्लस 150, ये यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 150 इंटू इंटीग्रेट करता हूँ तो x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से लगा देता हूँ 0 से 0.2 तक। ओके, तो 50 इंटू 0.2 दैट इज बेसिकली 10 प्लस 150 इंटू 0.04 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करता हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट 13 किलो जूल वर्क। सो वी आर नॉट एबल टू सी इट। देखिए 50 इंटू 0.2 प्लस 150 इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसको इंटीग्रेशन को, यू विल गेट 13 किलो जूल। ओके, अब देखिए इसमें जो 13 किलो जूल में है, यदि आप फील करते हैं तो ये जो 200 इंटू ए इंटू डी एक्स, ये जो वर्क आया ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्लस पिस्टन वेट को राइज करवाने के लिए हुआ है, जैसे हमने लास्ट आइसोबारिक प्रोसेस वाले क्वेश्चन में किया है। तो दैट दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक एंड द टू राइज द वेट ऑफ द पिस्टन। ये जो वर्क हुआ है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हुआ है। ओके, सो ये जो 10 किलो जूल वर्क है दिस इज फॉर द राइज ऑफ द पिस्टन और द वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर, उन दोनों का सम है। और जो ये बाकी जो वर्क हुआ है 10 के अलावा जो 3 किलो जूल, ये हमारा स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हुआ है। ओके, तो टोटल 13 किलो जूल हुआ है। आप अपने आप से एरिया अंडर द कर्व का भी, एरिया अंडर द कर्व से भी वर्क निकाल सकते हैं, सेम हमारा 13 किलो जूल आएगा। ओके।
तो ये हमारा स्टैंडर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसको हम देखिए मैंने इंटीग्रेट करके करवाया है। ओके, दूसरा इसमें सिंपल आप एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हैं, कुछ सिंपल नहीं है, ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना है, या फिर दूसरा आप इस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल इन दोनों के एरिया को ऐड कर सकते हैं, या फिर ट्रेपेजियम का एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए ये दोनों वॉल्यूम्स तो आपको गिवन ही है। ओके, कि ये इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है, फाइनली कह रहा है वॉल्यूम डबल हो जाता है, आपको पता है, आपको केवल प्रेशर कैलकुलेट करना है फाइनली। और प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मैंने बताया हुआ है कि पी गैस की हम फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखा हुआ है। एक्स आपने निकाल ही लिया है कि एक्स फाइनली कितना होगा, 0.2 हो जाएगा, तो आप यहाँ 0.2 डाल दो तो आपके पास गैस का फाइनल प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो जब गैस का फाइनल प्रेशर आ गया, इनिशियल प्रेशर आपको पता है, वो ये वॉल्यूम पता है, ये वॉल्यूम पता है, तो आप एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हीट के बारे में। ओके, सो देखिए हीट इज बेसिकली, हम इस वीडियो में हीट के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, हीट आपको देखिए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इज बेसिकली एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, दैट वी कैन से हीट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, दैट इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री। ओके, ये एक बाउंड्री फिनोमेना है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट वी जनरली से इट इज अ हीट। साइन कन्वेंशन हम देख लेते हैं, हीट सप्लाई टू द सिस्टम वी आर टेकिंग पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होता है। ओके, अब दो टाइप से हम हीट को डिफाइन कर सकते हैं। वन, देखिए एक सेंसिबल हीट होता है, एक लेटेंट हीट होता है। सेंसिबल हीट बेसिकली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर राइज ऑफ द सिस्टम, एंड इन लेटेंट हीट इट्स वी कैन कैटेगराइज इन टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, in this case there is basically the phase change process during the latent heat. If we are supplying latent heat, then the phase is going to be changed. In fusion there is change from solid to liquid, in vaporization the phase is changed from vapor to liquid. अब स्पेसिफिक हीट को हमने कैसे डिफाइन किया है, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल C। ये बेसिकली होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ यूनिट kg मास टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हीट सप्लाइड to rise the temperature of the system by unit degree Celsius of a unit kg system. ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए क्यू की वजह से जूल पर केजी केल्विन। ओके, अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो टर्म्स आ रही हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ हम फेज चेंज कैसे कहाँ तक कैसे कराएंगे, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वेपराइजेशन में फ्रॉम वेपर टू गैस। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल L। ओके, स्पेसिफिक हीट हमने डिस्कस किया, लेटेंट हीट इज डिनोटेड, इट इज लाइक दैट, Q इज बेसिकली M into L। ओके, Q is heat, M is mass of the system, L is basically the latent heat. Okay, again in case of solid and liquid, single value of C means specific heat की जो वैल्यू होती है वो सॉलिड और लिक्विड में एक ही वैल्यू होता है, लेकिन गैसेस के केस में Cp और Cv दो टर्म्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये बेसिकली मैंने वाटर का ड्रॉ किया है कि बेसिकली कैसे फेज चेंज होता है, कैसे हम जब सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट जब हम हीट सप्लाई करते हैं, तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने ड्रॉ किया है। देखिए इनिशियल स्टेट में लेता हूँ, देखिए ये जो हमारी कंडीशन है ये 1 एटमॉस्फेयर पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट आइस है। ओके, 1 एटमॉस्फेयर पे हम स्टडी कर रहे हैं। अब हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो भी हीट सप्लाई हो उसे हम सेंसिबल हीट बोलेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वहां जो हीट सप्लाई हुआ वो लेटेंट हीट होगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस से अगेन हम हीट सप्लाई करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो अगेन देखिए टेम्परेचर राइज होगा, तो उसे हम सेंसिबल हीट बोलेंगे। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में फेज चेंज होगा, यहाँ लेटेंट हीट होगा, कौन सा वाला, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला। ओके, अब 100 डिग्री सेल्सियस वेपर से 150 डिग्री सेल्सियस अब फिर हम हीट सप्लाई करेंगे, तो ये सुपर हीटेड स्टीम में पहुंच जाएगा, तो यहाँ भी अगेन टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इसे हम सेंसिबल हीट बोलेंगे। ओके, तो ये हमें सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के डिफरेंस को समझने के लिए ये मैंने ड्रॉ किया है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड चीजें हैं, डेफिनेशन टाइप हैं, कि बहुत स्टैंडर्ड जो पता होना चाहिए। ओके, जनरली PSU एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट्स है। ओके, और ये हमने पहले डिस्कस भी कर लिया है।
और ये कुछ चीज़ें हम आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिराइव भी करेंगे, लाइक बोथ हीट एंड वर्क ओके आर पाथ फंक्शंस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। बोथ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। वर्क का मैंने बताया, हीट का हम फर्स्ट लॉ में डिस्कस करेंगे कि कैसे हीट पाथ फंक्शन है ओके। एंड दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ओके। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि आपका जब क्लोज लूप में जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा वो जीरो नहीं होता है। तो दोज वेरिएबल्स इन विच दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल इन साइक्लिक इंटीग्रल बोलता हूँ तो बेसिकली इन ए क्लोज लूप द साइक्लिक इंटीग्रल इनका जीरो नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये मैथमेटिक्स की टर्म है ओके। बोथ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर आर बाउंड्री फिनोमिना। Both are energy in transit, or basically I can say transient phenomena, or this is basically I can say the energy in motion. Okay. अब कुछ डिफरेंट टाइप के वर्क्स हैं, जैसे हमने पीडीवी वर्क कैलकुलेशंस किया पीडीवी वर्क का। अब पीडीवी वर्क को हम बाउंड्री वर्क भी बोल देते हैं, लेकिन बाउंड्री वर्क के अलावा डिफरेंट टाइप के वर्क ट्रांसफर पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे हम सिस्टम में यहाँ if this is a system of the gas, अब यहाँ हम एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से वायर कनेक्ट करके वहाँ करंट सप्लाई करेंगे ओके तो वो भी तो वर्क ट्रांसफर हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क ओके। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज वोल्टेज इनटू करंट I स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। अगेन हम सॉफ्ट वर्क ट्रांसफर कर सकते हैं सिस्टम में, दैट इज इंटीग्रल ऑफ टी डी थीटा। पेडल व्हील वर्क और स्टीयरिंग वर्क, देखिए स्टीयर से हम रोटेट करा के सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर करा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो देखिए यहाँ भी वर्क ट्रांसफर हुआ है सिस्टम में। अब हम फ्री एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो वर्क हमने डिस्कस किए हैं ये बेसिकली बाउंड्री वर्क के अलावा हैं ओके। अब बेसिकली पीडीवी वर्क के अलावा भी सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, सॉफ्ट वर्क और पेडल व्हील वर्क, और आई कैन से स्टीरर वर्क। स्टीरर की हेल्प से भी यहाँ वर्क ट्रांसफर हो सकता है। फ्री एक्सपेंशन में देखिए क्या है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड। देखिए यहाँ हमने वी हैव टेकन दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ पार्टीशन बिटवीन इट ओके। in this side there is a vacuum and this side we have gases filled inside the system ओके। जैसे ये मैं पार्टीशन को रिमूव करता हूँ, यहाँ वैक्यूम है तो बेसिकली देखिए बहुत ही सडन प्रोसेस होगा एंड बहुत ही रैपिड प्रोसेस होगा, क्योंकि इधर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, इधर प्रेशर बेसिकली बिल्कुल जीरो है, इधर गैस प्रेशर है, तो बहुत ही सडन एक्सपेंशन होगा फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। हम डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ हमें एग्जैक्ट पाथ का नहीं पता है। बहुत क्वासिस्टैटिकली होता तो हमें हर स्टेज पर पता होता कि किस वॉल्यूम पे कितना प्रेशर है, लेकिन ये बहुत ही सडन प्रोसेस हुआ है। यू आर नॉट इन पोजिशन टू मेजर इट एट व्हाट स्टेज व्हाट इज द प्रेशर। सो हमें पाथ का नहीं पता है, ये एक इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है फ्री एक्सपेंशन इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस ओके। अब देखिए यहाँ ये इररिवर्सिबल है तो पीडीवी वर्क एरिया अंडर द कर्व, आप बोलोगे कि देखिए एरिया अंडर द कर्व तो है तो वर्क तो होना चाहिए, बट फ्री एक्सपेंशन में हम पढ़ते हैं वर्क नहीं होता है। देखिए वर्क ट्रांसफर इसमें जीरो होगा, लेकिन पीडीवी का कैलकुलेशन करता हूँ एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 1 to 2 तो ये नॉन जीरो आ सकता है ओके। क्यों? क्योंकि ये हमें लगाना ही नहीं है, ये इट इज नॉट वैलिड हियर, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड हियर एज इट इज नॉट ए क्वासिस्टैटिक प्रोसेस ओके। क्योंकि ये एक सडन एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। और जो वर्क ट्रांसफर होगा फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 दैट इज जीरो ओके। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क जीरो होता है, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगता है, ये एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है ओके। सो ये सब बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, और जो ये वाला न्यूमेरिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ओके। जहाँ एक यहाँ स्प्रिंग अटैच की है हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, और मैंने आपको बोला है कि आप एरिया अंडर द कर्व से भी वर्क निकाल सकते हो, और सब कुछ मैंने आपको इसमें क्लियर कर ही दिया है। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है ओके, ये इट्स वेरी नाइस प्रॉब्लम। अब आगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने डिफरेंट क्वासिस्टैटिक प्रोसेसेस के वर्क डिस्कस किए हैं, अलग बाउंड्री वर्क के अलावा डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल वर्क, सॉफ्ट वर्क के बारे में यहाँ मैंने आपको बताया है, ऐसे भी वर्क ट्रांसफर हो सकता है। फ्री एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा
यहाँ हमने कुछ हीट के बारे में डिस्कशन हुआ, उसके बाद स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कैसे फेज चेंज प्रोसेस, सेंसिबल और लेटेंट हीट्स हमने डिस्कस किया। ये कुछ स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं, ये मैंने आपको बताया। ओके, so next video we'll discuss about first law of thermodynamics. Thank you so much. Bye.